Antiarrhythmic drugs. First, we will see the definition of arrhythmia: disturbance in the heart rate, rhythm, impulse generation or conduction of electrical impulses responsible for membrane depolarization. The first definition of arrhythmia is that when there is a disturbance in the heart rate, normal rhythm, impulse generation or the electrical impulses generated by the heart, when there is a disturbances in these all processes, it leads to arrhythmia condition. These disturbances can lead to alteration in overall cardiac function that can be life threatening. तो जो ये प्रोसेसेस चलते हैं जैसे हार्ट रेट, रिदम, इम्पल्स जनरेशन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जब ये सारे प्रोसेसेस में चेंजेस आते हैं तो पर्सन के कार्डियक फंक्शन में भी चेंजेस आ सकते हैं, विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, मीन्स पर्सन जो है वो डेथ के स्टेज में भी जा सकते हैं. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अरिथमिया. मीन्स व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंसेस इन आवर हार्ट रेट, रिदम, इम्पल्स जनरेशन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, दिस कंडीशन इज नोन एज अरिथमिया. तो व्हाट इज एंटी अरिथमिक ड्रग्स? Compounds used to prevent or treat cardiac arrhythmia is known as anti-arrhythmic drugs. तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या था अरिथमिया का? जब हार्ट रेट में, रिदम में, इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में जब इस प्रोसेसेस में चेंजेस आते हैं तो वो कंडीशन को बोलते हैं अरिथमिया. तो उस अरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए जब आप ड्रग्स यूज़ करते हो उसको बोलते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग्स. सो दिज आर द कंपाउंड्स यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट कार्डियक अरिथमियाज. Next, mechanism of arrhythmias. If the person is having arrhythmia condition, then what are the processes occurring in the heart? First is the disturbance in impulse generation, may be due to abnormal automaticity or delayed after depolarization. तो आपको पहले पता रहना चाहिए कि depolarization क्या है और repolarization क्या है. Depolarization means changes of electrical impulses to a नेगेटिव स्टेट. तो डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं वो नेगेटिव स्टेट में रहते हैं, और जो रीपोलराइजेशन रहते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं वो पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं. डीपोलराइजेशन मीन्स नेगेटिव स्टेट इम्पल्सेस एंड रीपोलराइजेशन मीन्स पॉजिटिव स्टेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. तो एरिथमिया कब होता है? जब इस इम्पल्स जनरेशन में या पॉजिटिव वो नेगेटिव स्टेट में अगर वो जनरेट हो रहे हैं इम्पल्स जनरेशन, तो वो डिस्टर्बेंसेस को बोलते हैं डिस्टर्बेंस इन इम्पल्स जनरेशन. और ये किस कारण हो सकता है? एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी के कारण भी हो सकता है. ऑटोमेटिसिटी मीन्स एबिलिटी टू डू थिंग्स विदाउट ऑक्यूपाइंग द माइंड. तो ये ऑटोमेटिसिटी क्या, ऑटोमेटिकली ही अपने इम्पल्सेस जनरेट करते जब नीड नहीं रहता उस टाइम पे भी, और एक्स्ट्रा में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, दैट इज़ एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी. सेकेंड इज डिस्टर्बेंसेस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन. तो इम्पल्स कंडक्शन, जो कंडक्शन होते हैं हार्ट में, जो ऐसे नोड से, एवी नोड से जो कंडक्शन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, तो जब उसमें भी डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं तो वो भी अरिथमिया के कंडीशन में भी आ सकते हैं. So this is the phenomena which is not needed. This slide is also not needed as this is a phases of action of potential of cardiac cells which is not needed in our anti-arrhythmic topic. Next, directly we move towards the classification of anti-arrhythmics. तो ये कुछ classifications हैं anti-arrhythmics के. First is class 1 sodium channel blockers, class 2 beta adrenergic blockers, under that is propranolol, acebutolol, esmolol. Class 3 is potassium channel blockers, amiodarone, bretylium, sotalol. Class 4 is calcium channel blockers, verapamil, diltiazem and miscellaneous. Under miscellaneous is PSVT. PSVT means paroxysmal supraventricular tachycardia. Paroxysmal supraventricular tachycardia. Under that is drug is adenosine, digoxin, and AV block is atropine. So these are the classification of antiarrhythmics. Next class 1. So first we will see the class 1 sodium channel blockers. Class 1 sodium channel blockers, under that again it is divided into 3. 1A prolonged repolarization,
as before I have said, repolarization means electrical impulses generated in a positive state. So under the drug is quinidine, procanamide, disopyramide, morphine. First B is shortened repolarization, lignocaine, mexiletine, phenytoin. 1C is little effect on repolarization, ancanide, flecainide and propafenone. So here is the slide of class 1A drug. So here in left side you can see the drugs such as quinidine, procanamide and other drugs. And so in right part it is written that class 1A drug slow phase depolarization, prolonged action potential and slow conduction. इसका मतलब ये है, तो इससे पहले मैंने बताया था कि depolarization मतलब electrical impulses which is generated in negative state. अगर negative स्टेट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं तो पर्सन को क्या है, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अरिथमिया. तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके डीपोलराइजेशन प्रोसेस को स्लो करने के लिए क्लास 1A ड्रग दिए जाते हैं. सो हियर इज द फर्स्ट ड्रग क्विनिडाइन. It is the D-isomer of quinine obtained from cinchona bark. जो cinchona bark है उससे quinidine drug obtain हुआ है. इसका mechanism of action ये है, it blocks sodium channels, reduces automaticity, conduction velocity and prolongs repolarization, and it also decreases phase depolarization, increases APD and increases ERP. तो इसका mechanism of action क्या है क्विनिडाइन का, ये ऑटोमेटिसिटी को रिड्यूस करता है. ऑटोमेटिसिटी से पहले मैंने कहा था ऑटोमेटिसिटी मीन्स विच हैज़ द एबिलिटी टू डू थिंग्स ऑटोमेटिकली. तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, अगर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ज़्यादा जनरेट हो गए तो हाँ कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं. तो उसको क्या करता है क्विनिडाइन, पहले ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, देन इट रिड्यूसेस द ऑटोमेटिसिटी. ऑटोमेटिसिटी के प्रोसेस को रिड्यूस करेगा. नेक्स्ट कंडक्शन वेलोसिटी को भी रिड्यूस करता है और रिपोलराइजेशन करता है. डीपोलराइजेशन को हटा के रिपोलराइजेशन करेगा, नेगेटिव स्टेट को हटा के पॉजिटिव स्टेट में लेके आएगा. एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द डीपोलराइजेशन, इंक्रीजेस APD. APD मीन्स एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड इंक्रीजेस द इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. तो ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है क्विनिडाइन का कि वो जो सोडियम चैनल को वो ब्लॉक करके जो ऑटोमेटिसिटी हो रहा था, जो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रहे थे, उसको वो रिड्यूस करता है. और जो डीपोलराइजेशन स्टेट जो कि नेगेटिव स्टेट में था वो रिपोलराइजेशन स्टेट में लेके आता है. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अदर एक्शन आर इट डिक्रीजेस द BP, alpha block, skeletal muscle relaxation. Uses are atrial and ventricular arrhythmias. Adverse effects may be arrhythmias, heart block, hypotension, QT prolongation, gastrointestinal tract thrombocytopenia, hepatitis, idiosyncratic reaction. Idiosyncratic reactions means the cause is unknown. High dose synchronism like quinidine. So these are the adverse effects. तो arrhythmia होने के chances रहेंगे. और arrhythmia अगर ड्रग सूट नहीं किया तो हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, QT प्रोलंगेशन मीन्स वो जो रीडिंग्स में गलत आएंगे, GIT, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेपेटाइटिस, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन मीन्स अननोन कंडीशंस कॉज हो सकते हैं जिसका कि आप रीज़न नहीं दे सकते हो. नेक्स्ट हाई डोसेस, अगर हाई डोज दे रहे हो तो सिंक्रोनिज्म होने के चांसेस रहें. दिस इज क्विनिडाइन. नेक्स्ट इज प्रोकैनामाइड, डेरिवेटिव ऑफ प्रोकेन. जो प्रोकैनामाइड है वो प्रोकेन का डेरिवेटिव है. नो वैगोलाइटिक और अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन अनलाइक क्विनिडाइन. तो ये नो वैगोलाइटिक और अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन इसलिए कहा गया, जो वेगस नर्व जो इंटरफियर करता है वो उसको स्टॉप करता है. वैगोलाइटिक मीन्स इनिबिशन ऑफ एक्शन ऑफ वेगस नर्व ऑन दी हार्ट, GI एंड अदर नर्व. जो वेगस नर्व है अगर वो हार्ट के प्रोसेस में, हार्ट के फंक्शनिंग में अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको वो स्टॉप करेगा. तो दैट इज़ नो वैगोलाइटिक मीन्स वेगस नर्व को इंटरफेयर करने नहीं देता है हार्ट के फंक्शन में. Next is better tolerated and adverse effect are nausea, vomiting, hypersensitivity reactions. Higher dose can cause hypotension, heart block and QT prolongation. Next drug is
Pyramide. Disopyramide, significant anticholinergic. It has anticholinergic properties, dry mouth, blood vision, constipation, urinary retention. तो ये सारी चीज़ होने के चांसेस रहते हैं अगर डाइसोपैरामाइड ड्रग्स देते तो ड्राई माउथ, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन. नेक्स्ट वी विल सी दी क्लास 1B ड्रग्स. तो इससे पहले जो हम देखे थे दैट इज़ क्लास 1A ड्रग. नेक्स्ट इज़ क्लास 1B ड्रग्स. इसके ड्रग्स हैं लिग्नोकेन, फिनाइटोइन एंड मैक्सिलेटिन. तो ये क्या करता है, ये भी सेम है, ब्लॉक सोडियम चैनल्स, ऑल्सो शॉर्टन रीपोलराइजेशन. तो इसमें क्या सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा और रीपोलराइजेशन स्टेट को ये शॉर्टन करता है, स्लो करेगा. Next, first we will see the lignocaine. It is a local anesthetic, raises threshold for action potential and decreases automaticity. इसका भी मेन फंक्शन ये है कि जो ऑटोमेटिसिटी हो रहा है उसको वो रिड्यूस करेगा. सप्रेसेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एरिथोमेजेनिक टिश्यूज, नॉर्मल टिश्यूज लेस अफेक्टेड. तो ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो फास्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको वो रिड्यूस करेगा. नेक्स्ट, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. यूजेस आर वेंट्रिकुलर एरिथमियास. यूज़ कब होता है, ये वेंट्रिकुलर एरिथमिया हुआ तो तब होता है. एडवर्स इफेक्ट है इसके ड्राउजीनेस, हाइपोटेंशन, ब्लड विजन एंड कंफ्यूजन एंड कन्वल्शंस. Next is phenytoin, anti-epileptic, also useful in ventricular arrhythmias and digitalis induced arrhythmias. तो phenytoin जो है वो anti-epileptic drug है, ये ventricular arrhythmias में भी यूज़ हो सकता है. Next drug is mexiletin, can be used orally, causes dose related न्यूरोलॉजिकल एडवर्स इवेंट्स लाइक ट्रेमर्स एंड ब्लड विजन. तो ये अगर कार्डियक फंक्शन, एबनॉर्मल कार्डियक फंक्शन के साथ साथ अगर ट्रेमर्स हो रहे हैं, ब्लड विजन हो रहे हैं या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो रहा है तो ये ओरली ड्रग्स दे सकते हैं. नोजिया कॉमन है इसका एडवर्स इफेक्ट एंड यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू लिग्नोकेन इन वेंट्रिकुलर अरिथमिया. अगर लिग्नोकेन यूज़ नहीं हो रहे हैं तो उसके अल्ट्रेशन में मैक्सिलेटिन ड्रग यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल सी दी क्लास 1C ड्रग्स. क्लास 1C ड्रग्स में आता है आपका एनकेनाइड, फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनोन. तो हैव मिनिमल इफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन, आर मोस्ट पोटेंट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स. ये क्या है, इसका मिनिमल इफेक्ट है, ये लेस अफेक्ट करता है रिपोलराइजेशन में और ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को ब्लॉक करते हैं. रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ, सो नॉट यूज्ड कॉमनली, मे बी यूज्ड इन सीवियर वेंट्रिकुलर एरिथमिया. तो ये ड्रग्स जो है, ये 3 ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसमें डेथ का जो रिस्क है वो ज़्यादा होने के कारण ये कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं. तो इन अगर सीवियर वेंट्रिकुलर एरिथमिया हुआ है, अगर कोई दूसरे ड्रग का ऑप्शन नहीं हो सकता है तो उस टाइम पे ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं. Next is class 2 drugs. It suppresses adrenergically mediated ectopic activity. Ectopic activity means it is a sudden disturbance of cardiac rhythm frequently related to electrical conduction system. तो ectopic activity क्या है, ये सडनली जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट हो रहे हैं हार्ट में, कार्डियक फंक्शन जो नॉर्मल चल रहा है वो अचानक से अगर डिस्टर्बेंस हो रहे हैं उसमें, तो उस एक्टिविटी को बोलते हैं एक्टोपिक एक्टिविटी. तो उस एक्टिविटी को ये क्लास 2 ड्रग्स रिड्यूस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एंटी अरिथमिक एक्शन ड्यू टू अ बीटा ब्लॉकेट. इट डिप्रेसेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी. सेम फंक्शन है ये जो है, इसका मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, उसको रिड्यूस करता है. ऑटोमेटिसिटी जो है, ऑटोमेटिसिटी के प्रोसेस को भी रिड्यूस करेगा और कंडक्शन के वेलोसिटी को भी ये रिड्यूस करता है. नेक्स्ट ड्रग इज propranolol. Treatment and prevention of supraventricular arrhythmias, especially associated with exercise, emotion और hyperthyroidism. तो ये ट्रीटमेंट सुप्रावेंट्रिकुलर arrhythmias के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं. Esmolol is 4 short acting, can be used to treat arrhythmias during surgery, following MI and other emergencies. तो esmolol ड्रग्स जो है वो arrhythmias के लिए यूज़ हो सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम पे, या फिर कोई मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुए या फिर अदर कोई हार्ट से रिलेटेड एमरजेंसी हुआ है तो उस कंडीशन में esmolol ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल सी दी क्लास 3 ड्रग. क्लास 3 ड्रग्स जो है वो क्या करते हैं, जो APD एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन और ERP
पी और एज यू कैन से आरपी मीन्स इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये दोनों को क्या करता है, इंक्रीज करता है बाय ब्लॉकिंग दी पोटाशियम चैनल। ये अभी तक जो इससे पहले ड्रग्स देखे थे वो सारे क्या करते थे, सोडियम चैनल को ब्लॉक करते थे। नेक्स्ट क्लास थर्ड ड्रग्स जो है वो पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं बाय इंक्रीजिंग द एपीडी एंड इंक्रीजिंग आरपी। इसका फर्स्ट ड्रग है अमायोडारोन। अमायोडारोन में आयोडीन कंटेनिंग लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। तो इसमें अमायोडारोन में जो है आयोडीन प्रेजेंट रहता है जो कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मल्टीपल एक्शंस है, जैसे कि ये प्रोलॉन्ग्स एपीडी बाय ब्लॉकिंग पोटेशियम चैनल्स। ये जो एपीडी है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन की एक्टिविटी को और ज़्यादा प्रोलॉन्ग करता है और पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करता है। इट ब्लॉक्स इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल, सोडियम चैनल को भी इनएक्टिवेट करता है। बीटा ब्लॉकिंग एक्शन है। ब्लॉक्स कैल्शियम चैनल्स, डिक्रीजेस कंडक्शन, डिक्रीजेस एक्टोपिक ऑटोमेटिसिटी। तो एक्टोपिक ऑटोमेटिसिटी मैंने पहले भी कहा, इट इज़ अ डिस्टर्बेंसेस ऑफ द कार्डियक रिदम फ्रिक्वेंटली। तो ये जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके मल्टीपल एक्शंस है ये। फार्माकोकाइनेटिक्स, वेरिएबल अब्जॉर्प्शन 35 to 65%, स्लो ऑनसेट 2 days to several weeks। तो ये 2 दिन से लेके बहुत हफ्ते तक ये वर्क करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आर वीक्स टू मंथ्स। तो ये आप जब ड्रग्स देते हो इसका एक्शन जो है वीक्स से लेके मंथ्स तक प्रोलॉन्ग रहता है। मैनी ड्रग इंट्रैक्शंस। दिस इज़ अबाउट अमायोडारोन। Next is the uses. It can be used for both supraventricular and ventricular tachycardia। तो वह supraventricular और ventricular tachycardia related to heart problem ये यूज़ हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट है इसके सिस्टम वाइज से, अगर हार्ट में ये हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस रहेंगे। QT प्रोलोंगेशन, ब्रैडीकार्डिया, कार्डियक फेलियर एंड हाइपोटेंशन। Related to pulmonary system, it is pneumonitis leading to pulmonary fibrosis। तो pneumonitis होने के चांसेस रहेंगे in case of pulmonary system। bluish discoloration of skin, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, ब्लूइश कलर हो सकता है। GIT डिस्टर्बेंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस में हेपेटोटॉक्सिसिटी लीवर प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लॉक्स द पेरिफेरल कन्वर्सेशन ऑफ T4 to T3 कैन कॉज हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जो T4 T3 जो है ये थायराइड सिस्टम को ये डिस्टर्ब कर देता है और ये ब्लॉक कर सकता है। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट ड्रग इज ब्रेटिलियम, एडेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर यूज्ड इन रेजिस्टेंट वेंट्रिकुलर एरिथमियास। ये वेंट्रिकुलर एरिथमियास में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज सोटालोल, इट इज़ अ बीटा ब्लॉकर। डोफेटिलीड, इट इज़ अ सेलेक्टिव potassium channel blocker, less adverse events and oral use in AF to convert or maintain sinus rhythm। next is ibutilide। ibutilide drug जो है potassium channel blocker used as IV infusion in AF और flutter can cause QT prolongation। तो ये potassium ibutilide जो ड्रग है वो potassium channel blocker है जो कि IV infusion में आप दे सकते हैं। Next are calcium channel blockers, class 4th calcium channel blockers inhibit the inward movement of calcium, decreasing the contractility, atomicity and AV conduction। तो इसके ड्रग्स है वेरापामिल एंड डिल्टियाज़िम। तो इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ऑटोमेटिसिटी और कंडक्शन के जो प्रोसेस को रिड्यूस करता है। फर्स्ट ड्रग इज वेरापामिल, इट्स यूज इट टू टर्मिनेट PSVT। तो ये टर्मिनेट परमानेंटली स्टॉप करता है जो पैरोक्सिसिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया प्रोसेस को एंड इट कंट्रोल्स वेंट्रिकुलर रेट इन आर्टेरियल फ्लटर और फिब्रिलेशन। ड्रग इंट्रैक्शन है, डिस्प्लेसेस डिगॉक्सिन फ्रॉम बाइंडिंग साइट्स एंड डिक्रीजेस रीनल क्लियरेंस ऑफ डिगॉक्सिन। दीज आर द यूज। Next, other antiarrhythmics are adenosine purine nucleotide having short and rapid action। तो ये adenosine ड्रग जो है ये शॉर्ट है लेकिन फास्ट वर्क करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है एसिटाइलकोलाइन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है and causes membrane hyperpolarization through interactive with A1 type of adenosine। It's IV suppresses automaticity, AV conduction and dilates coronaries। drug of choice for PSVT। तो इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओवरऑल एक्शन ये है एडेनोसाइन का कि वो ऑटोमेटिसिटी जो इंक्रीज़ हो गया था उसको सप्रेस करेगा। नेक्स्ट AV कंडक्शन को भी ये सप्रेस करके जो
कोरोनरीज आर्टरीज जो भी है उसको वो डायलेट करता है। डायलेट करने के बाद जो PSVT है, PSVT को रिड्यूस करने के लिए मीन्स पैरोक्सिसिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को रिड्यूस करने के लिए ये चॉइस है, ड्रग चॉइस है जो एडनेसोइन ड्रग यूज होते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट है नोजिया, डिस्निया, फ्लशिंग एंड हेडेक। नेक्स्ट ड्रग इज atropine used in sinus bradycardia. Next digitalis atrial fibrillation and atrial flutter. Next magnesium sulfate digitalis induced arrhythmias. Thank you.